Good afternoon, students. Welcome to the another session of Information and Technology. Today, we were planning to give the revision of Part B or subject skills. Yesterday, we have given you the recapitulation of Part A, that is employability skills. But when I was starting to record this video for the recapitulation of Part B, I just thought, since we have not finished the entire portion of Part B, we have many things to discuss from chapter number 6, that is digital documentation. At the same time, we have not covered the last chapter. Once again, let me just tell you कि ये जो चैप्टर 6 आप देख रहे हैं, इसमें से सिर्फ हम लोगों ने मेल मर्ज पढ़ा है और चैप्टर नंबर 12 में बहुत सारे टॉपिक अभी भी डिस्कस करना बाकी है. So I just thought, instead of giving you a incomplete revision, let's finish the portion first. Then we will give you the recapitulation or revision of entire part B. आपका सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है. आज आपका जो क्लास है और इसके बाद जो भी आपका क्लासेस चलेंगे, विल फर्स्ट फिनिश ऑफ द एंटायर पोर्शन, ठीक है. एंड इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वी विल गिव यू द एंटायर सिलेबस. सेकेंड टर्म सिलेबस जो है ठीक उसी तरीके से है कि पूरा पार्ट ए, पूरा पार्ट बी, एक्सेप्ट चैप्टर 6 का टॉपिक्स विच वी हैव नॉट कवर्ड एंड चैप्टर 12 का टॉपिक विच वी हैव नॉट कवर्ड. ठीक है. तो रिवीजन वीडियो आज की क्लास में आपको नहीं मिलेगा. फर्स्ट वी विल फिनिश द पोर्शन. ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपने सिलेबस को, सो वी कैन कंप्लीट इट ऑन टाइम एंड बिफोर द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वी अश्योर यू दैट यू विल गेट ए रिवीजन वीडियो. वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा एफिशिएंट होगा अगर हम लोग एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको एक रिवीजन दे. सो इन द चैप्टर नंबर 12 वी विल कंटिन्यू इन चैप्टर नंबर 12 नाउ. आफ्टर वी विल फिनिश चैप्टर नंबर 12 वी विल कम टू चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग खत्म नहीं किए हैं सब टॉपिक. ठीक है. लेकिन फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि आपका सेकंड टर्म सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है. जो हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया है ठीक उसी सिलेबस पे आपके क्वेश्चन आएंगे. इसको पूरा खत्म करेंगे. प्री बोर्ड में आपका पूरा पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट आएगा, पार्शियल नहीं रहेगा. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 12 से स्पूफिंग और फिशिंग टॉपिक तक डिस्कस किया था. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव, दैट इज बेस्ट practices for web security. This topic is basically dealing with what are the different things, what are the different standard guidelines, the protocol, set of steps, set of initiative that can be done for web security. Web security is basically refers to a situation where your information, your identity, your confidential data is safe over the web, over the internet. Whether it is your details that you upload in social networking site, whether it is your banking details which you have like credit card, debit card, your login ID or password for the internet banking, or whether it is any sort of work that you have done on your own and you want to make an ownership of that particular product or any creative work. The best practices of web security mein we will talk about the different things that can be done to protect everything that belongs to you. The first thing, that is identity protection. Now there is a situation like it has been asked to you, would you like to reveal your personal information to a person who can make fun of your personality or has a bad habit of mocking? Surely not. It's simply asking you कि आप क्या अपनी आइडेंटिटी ऐसे लोगों के साथ रिवील करेंगे या ऐसे लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आपका मजाक उड़ा सकते हैं या फिर आपके आइडेंटिटी का मिसयूज कर सकते हैं या उसको आपको मॉकरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So what we need to do whenever we are accessing internet, we are using internet for any purpose, for browsing some information, for posting
some information, for uploading some information, for sharing some information, for communication purpose, for booking a ticket, for any time. What matters the most? Your identity. Your identity must be protected. And that basically means to have a practice of all those things, to have a practice of all those prototypes which can be used to protect your personal information, your bank details, your address details, your family details. So identity protection is very important when we talk about web security. Then protect username and password. Nowadays, it is quite obvious that we do have some username and password for different services. आपका एक ईमेल आईडी है, उसका एक आईडी पासवर्ड है आपके पास. आप सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक यूज करते हैं, for that purpose you have an email ID and password. You have some internet banking facility, you have a user ID and password for that. You want to use, or you are using the personal ID for booking a ticket in IRCTC website. For that you have an ID and password. So this is something very often that you will find that a person who is using the services of different fields, different areas through internet, they must have number of ID and passwords. So that ID and password has to be protected. How we can protect that? From an unauthorized access. So what we need to do, we do not have we should have a habit to remember it on our mind, or we should keep it somewhere which should not be accessed by anyone. But at any cost, we should not keep a record of our ID and password in our mobile phone, in our personal wallet, in a laptop. These things should be written, but in an encrypted form. अगर आप इसको कहीं लिख के रख रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पास ढेर सारी यूजर आईडी एंड पासवर्ड है जो आपके पर्पस के लिए है, जिनका आप रेगुलर यूज करते हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सेफ्टी आपके लिए कंसर्न है, उस केस में ये बहुत जरूरी है कि आप उनको जहां पर भी नोट करें, हमेशा एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में नोट करें. इंक्रिप्टेड फॉर्म, लाइक सपोज योर नेम इज अभिषेक एंड यू आर कीपिंग अ पासवर्ड, एक कॉमन पासवर्ड, abhishek@123. तो आप पासवर्ड abhishek@123 देख रहे हैं, तो उसको जब आप मान लीजिए कहीं पर नोट कर रहे हैं, ट्राई टू जस्ट मेक ए ट्रिक इनटू दिस कि ए के बाद का 2 लेटर यानी सी, बी के बाद का 2 लेटर यानी डी, एच के बाद का 2 लेटर यानी जे, तो उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में लिखिए. ठीक है, @123 को आप कर दीजिए रिवर्स में 987. यानी अगर आप किसी तरह से आपका इंफॉर्मेशन अगर किसी के हाथ में आता भी है, they will easily not able to identify. They will not give there is a chance that they will not give that effort to crack your password if you are not coming from a very popular category of people who are having a very huge transaction of money and other different confidential things. So what I'm trying to say, that your identity is important, then your login ID and password is important. In excitement, many a times we give our ID and password to our close friends, to our relatives, that okay, please take it and just have a use of it. We may have that consent, given that consent to other person. We may have that belief on that person or trust on that person. Okay, he is not going to misuse that particular details. But maybe he will not that concern, or she will not that concerned to keep your information that in that safety manner. तो जब भी आप कुछ भी सेव करते हैं, तो उसके लिए हमेशा चीजों को इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव कीजिए. डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. दिस इज वन ऑफ द अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वेब सिक्योरिटी. Like in different platform, we do have to give the details. That is not there is no alternative, there is no plan B, or there is no option to avoid that. आपको एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा, आपका बैंक डिटेल्स देना होगा अगर आप किसी तरह का स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं. What I am trying to say, that whatever you are giving a details while submitting a form or while responding to a call, do not give the details without checking the authenticity of that particular website or the caller.
Especially nowadays, you will find so many ad in the television that if somebody is asking you your bank details, your date of birth, your ATM card, your PIN number, by representing themselves as a bank official, we should not respond to these people. So, if you have to give the details that belongs to you, like your date of birth, your address, your contact details, your email ID, your card number, only share when you find the authenticity, it is legitimate. So you have to be very careful. And we need to have that concern, we need to have that proactive thinking. Okay, I'm filling a form for this particular examination. Whatever the details I'm giving, they will not share with other people. But in random websites, to use the free services, we used to give the details which we should not give. So please try to avoid these kind of scenario. Then we have secure online transaction. Nowadays, especially after the pandemic, you will find the usage of online transaction has increased a lot among various group of society. The people who used to avoid making transaction through debit card, through Google Pay or any UPI platform, now when you are going to the different place or for different services, buying different products or different other things, you will find they have a QR code for their UPI payment acceptance. They have a POS machine to just point of sale machine to accept the payment through the debit card. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं किसी भी तरह के वेबसाइट में या ऑफलाइन मोड में किसी दुकान में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है. वेदर द वेबसाइट इज सिक्योर और नॉट, वेदर दे हैव HTTPS प्रोटोकॉल और नॉट, whether somebody is not sitting into your machine while you are giving your ATM pin. The person should not have an eye on your ATM card. The person should not have an eye on your CVV number in the ATM card, which is in the back side. So we should always have that concern. We should always verify the website through which we are giving it transaction details or the payment details. Like there is a point you can find कि जो भी वेब ब्राउजर आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करती है, वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट अपने URL के साथ डिस्प्ले करती है विथ ए गोल्डन लॉक और ए ग्रीन लॉक. और जहाँ पर URL आपका डिस्प्ले होता है, अगर वो वेबसाइट सिक्योर है पेमेंट लेने के लिए, तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है और वो डिजिटल सर्टिफिकेट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट या URL वो सिक्योर है. ठीक है, तो उसी तरह से आपको एक पॉइंट एक्सेप्ट यहाँ मेंशन किया गया है दैट वेब एड्रेस विद द HTTPS सिग्निफाई दैट द वेबसाइट इज सिक्योर. अवॉइड यूजिंग अनसिक्योर्ड वाईफाई. मेनी टाइम वी आर जस्ट विलिंग टू यूज सम फ्री सर्विसेज ऑल द टाइम. आप रेलवे स्टेशन पे है, आप किसी पब्लिक प्लेस पे है जहाँ पर आपने वाईफाई ऑन किया, आपको फ्री वाईफाई मिल गया विदाउट एनी पासवर्ड, एंड जस्ट यू आर very happy that I will update all my apps, I will download some movies, I will download some videos, and I will just do something which I was not able to do because of limitations of internet speed. But always we need to take care that we should not use any public Wi-Fi for online transaction. We should not use the free Wi-Fi without any password, because the people intentionally give you the free Wi-Fi so they can crack into your system, your Android, your smartphone or your laptop, to get some important details which will be far important than your free Wi-Fi or far expensive than your free Wi-Fi. So please be very careful while you are using public Wi-Fi. Use it only for very limited purpose. Do not go for uploading so many information. Do not go for browsing social networking sites in a very great extent or large scale. Do not have any online payment in a free Wi-Fi. This is the things that has been mentioned. Don't accept unknown invitation. While in the age of social networking website, we are using different platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and we do accept the friend requests from many people. And there are category of people who always want to have number of friends in their friend list. Yeah, I have these many friends in my friend list. And for that purpose, for that objective, they accept the invitation from the unknown person, any stranger. Okay, that person is not known to me, let me just accept the invitation. I will have many friends in my friend list. Do not have that practice in while you are using social networking site.
Do not accept the invitation from any unknown person to whom you don't know. If you are not familiar with the face, just ignore the invitation, just delete the invitation request. It is not like that. Many a time we get a request from a person, from a face of a person who is known to us, and we actually think that person is genuine. I know him, so let me accept the invitation. But there are people who use the face or photograph of some other person to make a Facebook account in their name. But actually that is not created by the actual person. And we are not in a position to identify the legitimacy of that particular person. So please do not have that practice to accept the invitation in excitement, in hurry. Please have patience, check the authenticity, check the about us section. If you are very much sure, give a call to that person. Okay, do you have any Facebook ID? I have received the invitation request from you. If he confirm, okay, I have created, then only accept the invitation. Otherwise, let it be. Just ignore the request or delete the request. Use antivirus and anti-spyware software. आज के टाइम पे अगर आप लैपटॉप लेते हैं, अगर आप एक डेस्कटॉप यूज करते हैं, you will find that you have to have a very license and a proper antivirus, because you are using pen drive, you are using different website for different purpose. And in case you do not have an antivirus, you do not have an anti-spyware, you will find that your system is in danger. Your system is not performing well. Your system is behaving awkwardly. Your system is responding very slow. आपका फायरवॉल वीक कर रहा है, आपका फायरवॉल ब्रेक कर रहा है. तो इस तरह की चीजों पे आपको स्टॉप करने के लिए यू शुड ऑलवेज यूज ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ए लाइसेंस्ड वन which we have to buy from internet, so or from market. We will find there are many websites which gives a free internet service for 1 year without any payment, but actually they are not working like an antivirus. They are some sort of malware only which want to inject into your system and try to retrieve some information in the name of a free antivirus, because unknowingly we are giving them permission to do that, because while installing we have to accept so many terms and conditions, and we do not bother to read those instructions and terms and conditions. We just think, let me finish the installation. So that antivirus has to be installed, and that antivirus has to be up to date on a regular basis. Why? If I do not update the antivirus, the database will be of last date, of an old date, and in due course of that, you will find that many new virus which has been updated or developed in the recent days, they have just attacked your system. Then clear browser cookies frequently. जब भी आप किसी तरह के वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो कुकीज को इमीडिएटली डिलीट करने की हैबिट रखनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग ए सिस्टम आउटसाइड व्हेन ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव इन ए साइबर कैफे. आप कहीं पर भी किसी तरह का वेबसाइट एक्सेस, मतलब अगर दूसरी जगह पर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ब्राउजर की हिस्ट्री को, कुकीज को डिलीट करने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि कुकीज बहुत बार आपके सिस्टम के लिए एडवेयर का काम करते हैं, आपके सिस्टम के लिए स्पाईवेयर का काम करते हैं. किस तरीके से? वो कुकीज आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, कि आपका लॉगिन डिटेल्स हो गया, आपका पासवर्ड्स हो गया, आपने क्या ऑर्डर किया था किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में, उसका शिपिंग, आपका हैबिट वो जान जाते हैं कि आप किस तरह की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स ऐप पे. उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बेस्ड आपको वो प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया, ये प्रोडक्ट अभी मार्केट पे या ऑनलाइन इस प्राइस पे अवेलेबल है, लिमिटेड स्टॉक्स है, आज ही ऑर्डर कीजिए. तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी कुकीज़ को रेगुलरली क्लियर करना चाहिए, जिसमें आपके लॉगिन डिटेल्स हो सकते हैं, आपके शॉपिंग के डिटेल्स हो सकते हैं, आपके हिस्ट्री हो सकती है, कहाँ कहाँ किसी वेबसाइट को आपने एक्सेस किया. सो प्लीज always try to delete the cookies on a regular basis after you use the browser. Install firewall. This is something more or less available in all operating systems. Nowadays, there are many applications, there are many software which cannot be installed if you do not switch off your firewall, if you do not turn off your firewall. Because firewall is a kind of software, is a kind of combination of both software and both hardware, which keeps a record of all the things that you that wants to get into your computer, and try to identify the malicious software or malicious program which want to enter your system through a network.
मतलब आप जब किसी भी नेटवर्क को यूज करते हैं और आप किसी पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो उस दौरान आपके नेटवर्क ट्रैफिक में वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, वो नेटवर्क ट्रैफिक में इंट्रूजन करने की कोशिश करता है, और उन पर्टिकुलर फाइल्स को जिसको आपने डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट दिया, वो उस फाइल के थ्रू आपके सिस्टम में इंटर कर जाते हैं और आपके सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। तो वो नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, वो फ्लो ऑफ डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, वो डेटा में चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा जब भी आप एक सिस्टम यूज कर रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल टर्न ऑन है या नहीं है। ठीक है, बहुत बार नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आपको फायरवॉल को ऑफ करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर आप बाद में उसको ऑन जरूर कीजिए। आपका काम होने के बाद वो सॉफ्टवेयर को भी आप यूज कर सकते हैं फायरवॉल को ऑन करने के साथ। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, दिस इज समथिंग कॉमन। आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, वो सॉफ्टवेयर आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो आपको काफी अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको वो फ्रेंड से जस्ट बोरो करना होगा। In case you are not having that software in the market and you are not having that software with friends, we just Google that software in the browser and we just get the free download option, we click, we install. But this is something very risky for your system. We should have a habit to use the software from a verified source, from a supplier who is legitimate, who is not trying to manipulate your details. But at the same time, we have a question, is it possible for everyone who is having a laptop, as a student who is just a student of a class 8 or a 10 or a 12 student using a laptop or desktop for other purpose? It is not practically possible, but we try to get the software from the official website of that particular product. अगर आपको मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारे कॉमन वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए सॉफ्टवेयर चाहिए गूगल क्रोम का, तो आप गूगल क्रोम के सॉफ्टवेयर को filehippo.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टनिक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट यू शुड जस्ट डाउनलोड द गूगल क्रोम फ्रॉम गूगल वेबसाइट ओनली, गूगल क्रोम वेबसाइट ओनली। Just type Google Chrome, you will get into the official website of Google Chrome. There only you will get the option, download Google Chrome for your Windows. They will give you the option कि आपको Windows 7 के लिए डाउनलोड करना है, 8 के लिए करना है, Windows 10 के लिए करना है, 32 बिट के लिए करना है कि 64 बिट के लिए करना है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। जब भी आप डाउनलोड करें, कोशिश करें कि आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस या ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है जो आप एक वेबसाइट से एक्सेस कर रहे हो। डेटा स्टोर्ड इन वेब ब्राउजर, आपके वेब ब्राउजर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं डेटा होते हैं जो आप यूज करते हैं रेगुलर यूजर्स के कारण, वो टेम्परेली सेव होते जाते हैं। जैसे कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको आप लॉगिन करते हैं, फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो आपको मैसेज आएगा, डू यू वांट टू रिमेंबर द पासवर्ड। अगर हमने रिमेंबर में यस कर दिया तो अगली बार आप उस साइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको वो आईडी और पासवर्ड दोनों नहीं मांगेगा, इमीडिएटली वो ओपन हो जाएगा, या उसका पासवर्ड उसके टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी फिल्ड अप रहता है। तो ये ऑप्शन रिस्की है अगर आपका सिस्टम मल्टीपल यूजर्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो हमें ये हैबिट को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए कि हम किसी भी तरह के वेबसाइट को एक्सेस करते समय उसके पासवर्ड यानी लॉगिन डिटेल्स को सेव ना करें। ठीक है, आप बहुत बार ऐसा वेबसाइट होता है जिसको आप एक्सेस करते हैं जो आपके सिस्टम के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के वेबसाइट जैसे इफ यू आर एक्सेसिंग एनी वन वेबसाइट एंड यू आर नॉट डिलीटिंग द ब्राउजिंग हिस्ट्री, देयर आर सम malicious files that may get into your system through some network traffic or through some sources which you are not without your consent, without your acknowledgement, and they will start manipulating the behavior of your system. So it is always a healthy practice to delete the browsing history, to delete the cookies, to check what are the details that have been stored by your web browser, whether I should keep in my web browser or I should avoid it. If you are storing it, you should store it only in the situation when you find that okay, this is something protected which will not be accepted by anyone else. Password. A password can be termed as a key of codes that protect our valuable content. पासवर्ड है क्या? इसको एक कोड्स के कॉम्बिनेशन, की कोड्स के की तरफ लोग टर्म कर सकते हैं
जिसमें कि हम लोग अपने वैल्यूएबल कंटेंट्स, अपने आइडेंटिटी को, अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी चीज जो आपसे बिलोंग करती है, उसकी सेफ्टी के लिए, उसको एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको उसमें इनबिल्ट आईडी एंड पासवर्ड देना बहुत जरूरी है। दैट इज द रीजन इफ that is the reason that in case there are some other unauthorized people who wants to get into your system, who wants to get into your website or ID, they will not be able to. So there is a very real life example that has been mentioned. When you are traveling with a trolley or your bag or luggage bag, you will find they have a lock system रहता है जिसमें हम लोग lock use करते हैं. That is being used for the safety of the things that has been kept inside the luggage. And when you are giving the correct lock, then only your bags get opened. Otherwise, it is not getting opened. So what I am trying to say, that password refers to a set of code which is used for protection for the valuable content. And that is one of the other best practices for the internet of while using web security. अब इसमें और कुछ चीजें दी हुई हैं कि आप जब भी पासवर्ड यूज कर रहे हैं किसी भी तरह के वेबसाइट के लिए, कोई ऐसा फाइल या डॉक्यूमेंट है जो आप सिस्टम पे स्टोर करके रखें उसके सेफ्टी के लिए, आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड की सेफ्टी के लिए, नेट बैंकिंग के पासवर्ड की सेफ्टी के लिए, IRCTC के पासवर्ड की सेफ्टी के लिए, सोशल नेटवर्किंग साइट के वेबसाइट के पासवर्ड की सेफ्टी के लिए, तो हमेशा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका पासवर्ड बहुत ही ईजी टू आइडेंटिफाई ना हो, इजी टू गेस ना हो। आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पासवर्ड्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमें वो याद करना पड़ेगा और हम लिख के नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर किसी का नाम चंदन है तो सिंपल पासवर्ड रख देगा, चंदन, अपना डेट ऑफ बर्थ रख देगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स should always be avoided. Being a person, especially listen, those who are a citizen, who are elder than you, who are not willing to have that complicated password, जिनके लिए बहुत complicated चीजें हैं, तो वो हमेशा पासवर्ड इजी रखना चाहते हैं। But when you are acting as a student of class 10 and you are having any access of any particular resources in the internet, you always should have that practice to use some password which can't be easily guessed by other people. At the same time, you should aware other people that these are the things that we should always carry, we should always follow while we are keeping our password for any particular website. Now, this is something very important question. What are the tips for keeping non-guessable password? मतलब आप जब भी पासवर्ड सेट करें तो क्या क्या ऐसे ट्रिक हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं पासवर्ड को नॉन गेसेबल यानी उसको इंटैक्ट बनाने के लिए, उसको ज्यादा सेफ बनाने के लिए। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जिनमें लिख तो दिया जाता है द पासवर्ड शुड बी ऑफ 8 to 15 कैरेक्टर। आप 8 कैरेक्टर डाल रहे हैं लेकिन उसका वो स्ट्रेंथ कैपेसिटी, उस पासवर्ड का लेबल वो इजीली शो करता है, दैट इज ए इजी पासवर्ड, दैट इज द मीडियम पासवर्ड, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो वो शो क्या कर रहा है, आपके जिस तरह से आप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं वो आपको बताता है कि आपका पासवर्ड इजी टू गेस है, थोड़ा मॉडरेट है या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो उस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन, कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। हमेशा पासवर्ड को कोशिश करना चाहिए कि आपका पासवर्ड में 8 कैरेक्टर हो, उस 8 कैरेक्टर में नंबर भी हो, लेटर्स भी हो और सिंबल भी हो। ये 3 चीजें होनी चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर यानी कुछ सिंबल भी हो, @ स्टार, हैश, अंडरलाइन, डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बहुत सारे ऐसे साइन हैं जिसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन उन स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग अपने पासवर्ड में यूज कर सकते हैं। सेकंड टिप, अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटेशन लेटर्स और नंबर सीक्वेंस। मतलब पासवर्ड आप में आपका रिपीटेटिव लेटर्स या रिपीटेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जिनका नाम मान लीजिए पंकज है, वो अपना पासवर्ड रख देते हैं पंकज 2222, तो या फिर अपना नाम रख देते हैं मान लीजिए किसी का नाम मनीष है, वो अपना पासवर्ड रख देता है मनीष @मनीष। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कि when you are keeping a password, do not repeat the same letter or same numbers in your password. Try to have a different letters or different series of numbers in your password. Use a combination of uppercase and lowercase always. ठीक है, नॉर्मली हम अपना पासवर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखते हैं, बाकी का स्मॉल रखते हैं. आप उल्टा कर सकते हैं, आप सारा स्मॉल कीजिए, बाकी लास्ट का कैपिटल कर दीजिए. देखिए, इस तरीके से आप जब भी पासवर्ड रख रहे हैं तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज करने दोनों की कोशिश करनी चाहिए. अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल पर्पज. ये भी एक हमारी हैबिट होती है. हम चाहते ही नहीं कि हम मल्टीपल पासवर्ड्स को याद रखें. हम कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बना तो लिए हैं, बट हम ये चाहते हैं कि चलो हर जगह इसी को यूज करेंगे, झंझट ही खत्म. क्यों यूज करेंगे? आप इस तरह के हैबिट को भी अवॉइड करना चाहिए. आप अपने फेसबुक के लिए भी आपने एक पासवर्ड रख लिया है, आपने अपने ईमेल आईडी के लिए भी एक पासवर्ड रख लिया है, आपने नेट बैंकिंग के लिए सेम पासवर्ड रख लिया है. इस तरह की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड यूजिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट इज पब्लिकली नोन टू अदर्स. ये भी काफी कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी आप पासवर्ड बना रहे हैं तो कुछ इन चीजों का इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जो पब्लिकली नोन है, जैसे आपका गाड़ी नंबर, आपका पेट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, आपका नेटिव प्लेस. इस तरह की चीजों को पासवर्ड में अवॉइड करना चाहिए, जो कि आपसे जो कनेक्टेड लोग हैं वो आपके इजीली गेस कर सकते हैं. अवॉइड कीपिंग नेम्स ऑफ लव्ड वंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एज पासवर्ड. ये एक टिप्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए जब हम पासवर्ड को सेट करते हैं. नॉर्मली हमारी ये हैबिट होती है, being a human being, the person we love, the person who is very close to us, the person who is a kind of ideal for you, a person to whom you just respect a lot, the person who you idealize a lot. ठीक है, this kind of their name you want to keep as a password. ठीक है, तो इस तरह की हैबिट को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज मेनी टाइम पीपल कैन गेस दैट ओके he loved that particular person, her wife name is this, her husband name is his wife name is this, her husband name is this particular name. तो अगर इस तरह की सिचुएशंस में आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप किसी का नाम, अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखिए. नाम के लेटर्स में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स डाल दीजिए, एक लेटर नाम का, फिर एक नंबर, फिर दूसरा लेटर, फिर नंबर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, फिर नाम, फिर नंबर. आप नाम भी रह जाएगा, नंबर भी रह जाएगा, उसका एक सीरीज बना लीजिए. व्हाट ओवरऑल आई एम ट्राइंग टू गिव यू इनटू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, कि जब भी आप पासवर्ड सेट कर रहे हो, चाहे नेट बैंकिंग के लिए हो या किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वेबसाइट के लिए हो, पासवर्ड को पहले एक बार इमीडिएट पेपर में लिख लीजिए कि मैं ये पासवर्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स है, जिसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है. स्पेशल कैरेक्टर के साथ अपर केस का एक लेटर है, एक लोअर केस का यानी कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है. मेरे कोई लव्ड वन का नाम है, कोई नंबर रिपीटेटिव नहीं है. एक पेपर में लिख लीजिए और उसको सेट कर लीजिए, और उसको सेट करने के बाद पेपर में उस चीज़ को फाड़ दीजिए या मिटा दीजिए. इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना चाहिए जब आप पासवर्ड सेट कर रहे हो, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट रियल टाइम पे, रन टाइम पे पासवर्ड सेट करने जाते हो तो आपको पता चलता है, आपको समझ में नहीं आता है किस तरह का पासवर्ड रखें. तो अब जल्दबाजी में आपको पासवर्ड क्योंकि इमीडिएटली सेट करना देना पड़ता है, क्यों नहीं तो सेशन आउट हो जाएगा. तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो दिमाग में पासवर्ड आता है इमीडिएटली उसको रख के कैरी ऑन कर जाता है या प्रोसीड कर जाते हैं. डू नॉट डू दैट, जस्ट डोंट डू दैट. ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द पासवर्ड इन ए पीस ऑफ पेपर, जो आप रखना चाहते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हो और जो इजीली गेस ना हो, और उसके बाद उसको अपने सिस्टम के लिए सेट करना चाहिए. Having a strong password is important to safeguard oneself from the following negative impact. ठीक है, मतलब पासवर्ड अगर आपका स्ट्रांग हो तो आप अलग अलग चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं. आपका पर्सनल फाइल कोई डाउनलोड या स्टील नहीं कर पाएगा, किसी भी तरह का मैसेज आपके आईडी या आपके अकाउंट से ट्रांसमिट नहीं होगा आपके बिना कंसेंट के. आपके पर्सनल डिटेल्स मॉडिफाइड होने से या अल्टर या मैनिपुलेट होने से बच जाएंगे. आप के नाम पर कोई चीज़ अगर बेची जा रही है या कोई चीज़ मार्केट में उसका एक अलग या गलत यूज़ किया जा रहा है तो उससे आप बच जाएंगे. ठीक है, आपके अकाउंट से किसी तरह का कोई इनअप्रोप्रिएट बैंक ट्रांसफ़र या नॉर्मल एक इलिजिमेट बैंक ट्रांसफ़र होगा नहीं बिना आपके नॉलेज के. तो मैं कहना चाह रहा था
कि ये सारे टिप्स है, इन टिप्स के होने से आप क्या क्या चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इस टर्म में दिया गया है, इसको आप अच्छे से अपने सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन यूज टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। चलिए, तो ये लास्ट टॉपिक है, यूज टू फैक्टर एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या? मतलब आपके सिक्योरिटी में एक एडिशनल लेयर जोड़ देना। मतलब आप मान लीजिए किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एक आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं। इफ यू हैव इनेबल्ड द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर दैट वेबसाइट, अगर वो जीमेल हो, फेसबुक हो, तो वो क्या करेगा, आपका आईडी पासवर्ड तो एक्सेप्ट करेगा ही, उसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप पे वो एक ओटीपी जनरेट करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजेगा, एंड इट विल लॉग इन ओनली व्हेन यू विल गिव द करेक्ट ओटीपी। So that is a two-factor authentication term which we are using. अगर आपके एब्सेंस में किसी और लोग ने ट्राई करने की कोशिश की लॉगिन करने की और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो इमीडिएटली वो मान लीजिए उसके पास आईडी एंड पासवर्ड है, फिर भी वो लॉगिन इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ओटीपी आपके पास मोबाइल में आया है और आपको पता है कि आपने ये वेबसाइट एक्सेस किया ही नहीं है। तो उस केस में आप सेफ रह सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Two-factor authentication or multi-factor authentication refers to a situation when we are adding a additional layer of security in our existing logged in security or in our existing system, where we get an OTP or we have to log in through fingerprint or face scanner, where after giving the ID and password. It is not only ID and password, it is a additional layer of security. मतलब आपके ID पासवर्ड होने के बाद भी आपका डिटेल्स आपका प्रोफाइल में तभी एक्सेस कर पाएंगे व्हेन द यूजर विल गिव द ओटीपी विच हैज बीन सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द ऑनर। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वेब सिक्योरिटी में देखा कि किस तरह से हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को, अपने डिटेल्स को, जो काफी कॉन्फिडेंशियल है, आपको वेबसाइट अलग अलग सर्विसेज को यूज भी करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको उनकी सेफ्टी को लेकर भी कंसर्न रहना है। उस केस में आप तभी निश्चिंत हो सकते हैं जब आप अलग अलग चीजों को फॉलो करें, चाहे वो फायरवॉल ऑन करना हो, चाहे वो आपका अलग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना हो, ठीक है, या फिर आप चाहे अननोन सोर्स से इंस्टॉल ना करना हो सॉफ्टवेयर, फायरवॉल इंस्टॉल करना हो, ब्राउजर की कुकीज को रेगुलर डिलीट करना हो, एंटीवायरस इंस्टॉल करना हो, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करना हो, पब्लिक वाईफाई को यूज ना करना हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तभी यूज करें जब आपका गोल्डन पैडलॉक आए विथ HTTPS, अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को शेयर ना करना हो। तो इनको आप प्रिसाइज करके, समराइज करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर समथिंग विच इज वेरी कॉमनली आस्क्ड, और इफ नॉट आस्क्ड यू शुड हैव अ कॉमन आइडिया और वेरी फेमिलियर विद दीज थिंग्स। ओके, सो ये आज के क्लास के लिए इतना ही था। अब आगे के क्लास में आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में भी आए और आराम से हम लोग सिलेबस को भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के टॉपिक्स को देखेंगे, और आपका जो रिवीजन है पार्ट बी का, वो मैं करूँगा तभी जब मेरा पूरा का पूरा पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि सेकेंड टर्म के पहले हम इस पूरे रिवीजन को ना कर पाए। अगर पार्ट बी खत्म नहीं होगा तो उसको रिवीजन को नहीं करेंगे, तो पार्ट बी खत्म नहीं होगा तो रिवीजन नहीं होगा, तो इसमें पैनिक ना करें। जिस हिसाब से आपको पोर्शन दिया गया है उस हिसाब से प्रिपेयर करें। दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन एज पर द बोर्ड फॉर्मेट। You will be familiar. In the pre-board, we will have the same format, but with the entire syllabus. I hope चीजें आपको clear है. So this is for the day, children. Thank you, everyone. Stay home and stay safe.